پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا سبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے وہ نازک دور دیکھے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اپنا معاشرہ دیکھیے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز پڑھنے جانے لگے تو لوگ عزت کرتے ہیں بھائی نمازی آ رہا ہے، کرتے ہیں کہ بھائی نمازی آ رہا ہے۔ اگر کوئی قسمت سے مصطفیٰ کا مدینہ گھوم آئے تو لوگ کرسیاں چھوڑ کے کرتے ہیں بھائی حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ اگر اور کسی کی قسمت بلند ہو، قرآن کا حافظ ہو جائے، لوگ اسے سر پہ اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ ہے، شاہد اسلام نے وہ بھی دور دیکھا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا تو پرائے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اسلام نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ نبی کا نام لینا جان گنوانے سے کم نہیں تھا۔ آپ مکے کی تاریخ اٹھائیے، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سب چھوڑ کر جانے لگے۔ جو کہتے تھے تم صادق ہو، اور جو کہتے تھے تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جو نبی کو امانت دار سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کہا تمہارے ارادے درست نہیں ہیں۔ آخرکار جب سب چھوڑ کر جانے لگے تو ایک 10 سال کا بچہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محبوب ہمیشہ ساتھ دو۔ شاہد ایک دور تھا اور 10 سال کا بچہ ساتھ میں تھا۔ اسلام بڑھتا رہا، اسلام بڑھتا رہا، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ ایک دن میرے نبی ادھر سے گزر کر جا رہے تھے، ادھر سے ابو جہل یاروں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے میرے نبی کو دیکھ کر کہنے لگا یارو وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں، میں انہیں پریشان کروں گا، میں ان کے ساتھ مذاق کروں گا۔ میرے نبی جا کر پہنچے، اس نے میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی کے کپڑے کو پکڑ کر ہلانا شروع کیا۔ میرے نبی نے بات کو جانے دیا، قسم خدا کی مسلمانوں میرا نبی آتنک پھیلانے نہیں آئے تھے بلکہ پھیلے ہوئے کائنات میں آتنک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ جب اس نے سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں تو اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہی پتھر میرے نبی کے جسم کے اوپر چلایا، وہی پتھر آ کر میرے نبی کے سر پہ لگا، سر سے خون نکلنے لگا۔ شاہد تاریخ گواہ ہے، اگر ہمارے چوٹ لگ جاتی ہے تو اپنے گھروں میں جایا کرتے ہیں، اپنے والد والدہ سے شکایت کیا کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کے چوٹ لگی ہوئی ہے، پلٹ کر آمنہ کے آنگن میں نہیں گئے ہیں، گھوم کر عبداللہ کے آجاکت میں نہیں گئے ہیں، سیدھا رخ حرم شریف کی طرف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اپنا درد اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ادھر سے ان کے شہید چچا آ گئے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ آپ جب شکار سے واپس آیا کرتے تھے تو چلنے کا انداز الگ ہوا کرتا تھا، یوں بازوں کو پھیلا پھیلا کر چلتے، یوں اتنا کر چلتے۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ کو 2 کنیزیں دیکھ کر کھڑی کھڑی باتیں کرنے لگی، کہنے لگے لگتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ ابو جہل نے اس کے بھتیجے کو پتھر سے مارا۔ اللہ اکبر، اگر اسے معلوم ہو جاتا تو یہ اکڑ کر نہ چلتا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا ہوا امیر حمزہ کے قدم پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کنیزوں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو کنیزوں نے کہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو پتھر سے مارا ہے۔ بس اتنا سننا ہوا، امیر حمزہ گھر کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا کمال سنبھالتے ہیں، ادھر جا کر دیکھتے ہیں جدھر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اتنی تیزی سے اس کے سر پہ کمان مارتے ہیں کہ سر پھٹا خون بہنے لگا۔ آپ ایک تاریخ ساتھی جملہ کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجا اللہ وارث ہے جو چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے؟ اتنا کہہ کر فوراً آپ واپس ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگوں میرا بھتیجا کہا گیا ہے؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے حرم شریف کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جا کر دیکھتے ہیں میرے نبی سجدے حالات میں، کہتے ہیں بھتیجا سجدے سے سر اٹھا لیجئے، پھر بھی میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بار کہتے ہیں بھتیجا سجدے سے سر اٹھا لیجئے، پھر بھی میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، تیسری بار کاندھا پکڑ کر کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھا لیجئے، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا۔ مسلمانوں تمہیں کیا لگتا ہے جس وقت میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا تھا اس وقت ان کے چہرے پہ خوشیاں تھی؟ آؤ اگر تمہارا دین سے کچھ لگا تو دل کو تھام کر سننا، میرے نبی نے سر مبارک پر سجدے سے اٹھایا تو پورا چہرہ خون میں لہو لہال تھا۔ جس جگہ پہ میرے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ جگہ پورے آنسوؤں سے تر تھی۔ امیر حمزہ نے کہا بھتیجا راضی ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا چچا میں اس طرح سے نہیں راضی ہوں گا۔ تو امیر حمزہ نے کہا کہ پھر بتاؤ کس طرح سے راضی ہو
अमीर हमजा का, जो ये कहते थे कि फिर बताओ किस तरह से राजी हो गए। तो मेरे सरकार ने फरमाया जिस रब की मैं इबादत करता हूँ तुम भी उस रब की इबादत करो, अगर वो रब राजी हो जाएगा तो मदीने वाला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजानी गौसुल वरा, फैजानी गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मोहम्मद भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर हमजा ईमान में आए, सरकार उस जगह से हटकर खाने काबा की तरफ गई और खाने काबा का गिलाफ सीने से लगा कर कहने लगे, या अल्लाह इस्लाम को तूने एक शेर अता कर दिया है, इस्लाम को दूसरा भी शेर अता कर दे, या उमर इब्ने हिशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। लेकिन मुकद्दर बुलंद था हजरत उमर का। जिस दिन मेरे नबी ने ये दुआ मांगी तो वो बुध का दिन था। क्या कहा? उमर इब्ने हिशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के के घर घर में बातें होने लगी। अब तो अमीर हमजा भी ईमान ले आए, अब तो ईमान और तेजी से फैलेगा, अब तो ईमान और तेजी से बढ़ेगा। ईमान को ऐसा नहीं रोका जा सकता है। एक घर में 26 साल का नौजवान जिसका नाम उमर है, घर का चक्कर लगा रहा है और मन ही मन में फैसला कर रहे हैं कि इस्लाम को ऐसा नहीं रोका जा सकता, क्यों न माने इस्लाम का काम तमाम कर दिया जाए। फिर आप ही ने सोचा कि ऐसा कौन शख्स है जो मक्के में जाकर बानी इस्लाम का सर कलम करेगा। फिर आप ही ने फैसला करा, चल उमर तो ही बानी इस्लाम का सर कलम कर चलकर। शाही मक्के में इतनी तेजी से धूप हुआ करती थी, जब कोई घर से चला करता था तो दीवार की परछा छाई से लगकर चला करता था, लेकिन उमर को इतनी तेजी से गुस्सा है, दीवार की परछा छाई से लगकर नहीं चल रहे हैं बल्कि बीच राह में जा रहे हैं, हाथ में तलवार लिए। आप दीवार की परछा छाई से लगकर नहीं चल रहे, बीच में जा रहे, बीच राह में तलवार लेकर जा रहे हैं। इधर से उमर जा रहे हैं, इतनी देर में उधर से नबी का दीवाना आ रहा है, उमर से मुलाकात हो जाती है। पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, बानी इस्लाम का सर कलम करने। नबी के दीवाने ने हंसने लगा, कहा, बानी इस्लाम का सर कलम करने? कहा, हाँ बानी इस्लाम का सर कलम करने। तो नबी के दीवाने ने कहा था कि जिस बानी इस्लाम का सर कलम करने जा रहे हो उसी बानी इस्लाम पर तुम्हारी बहन और बहनों जान का शैदा कर बैठी। अल्लाह अकबर। इतना कहना हुआ, गुस्सा उमर को था नबी की जात पे, लेकिन पलट कर आ गया बहन बहनों पर। उमर बहन के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, वही समझ जाती है कि उमर आ गए हैं। कुरान जो पढ़ाया जा रहा था वही ने कुरान को छुपा दिया। दरवाजा खोला, उमर ने आओ देखा ताओ देखा, बहन को मारना शुरू कर दिया। मारते रहे कसम खुदा के मुसलमानों। उमर की बहन के मुंह से खून निकलने लगा। उमर की बहन ने कहा, ए उमर, बस इतना कहना हुआ, उमर का हाथ थम जाता है। उमर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि हो सकता है मुझसे यही कहे कि रहने दीजिए उमर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन हैरत हुई उमर को, आलम चीख उठा। उमर की बहन ने कहा था, उमर तुम क्या समझते हो मैं तुमसे अपने कर्म की भीख मांगूंगी? तो उमर ने कहा, तुम फिर क्यों रोका है? तो उमर की बहन ने बहुत प्यारा जवाब दिया था, इब्ने खत्ताब के बेटे तुम भी हो, इब्ने खत्ताब की बेटी में भी हो, तुम उमर इब्ने खत्ताब हो, मैं सैयदा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर जरूरत तुम्हें भी आती है तो जरूरत मुझे भी आती है। तुमने इरादा कर लिया है कि उस वक्त तक मारूंगा जब तक ईमान नहीं छोड़ देगी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि जान दे दूंगी। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी अमीरुल औलिया, जश्नी गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर की बहन ने कहा, तुमने इरादा कर लिया है तो उस वक्त मारूंगा जब तक ईमान नहीं छोड़ देगी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि जान दे दूंगी, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना हुआ, उमर ने कहा, सैयदा ये वो उमर है कि मक्के के बड़े बड़े सरदार मीना उठाकर बात नहीं किया करते, तो औरत होकर इतना बोल ली है। तो उमर की बहन ने बहुत प्यारा जवाब दिया था, कहा था, तूने मेरे सरकार का चेहरा कायदे से देखा ही नहीं है, अगर देख लेता ये सवाल ही नहीं करता। अल्लाह अकबर। इतना कहना हुआ, उमर के दिल में अजीब से कैफियत जारी हुई। उमर ने कहा, वो बहन कुरान मुझे दे दे। उमर की बहन ने कहा, उमर ये कुरान मुझे नहीं
भी दूंगी। मेरा कुरान नापाक है तो नापाक है, पाक कुरान को नापाक आदमी हाथ लगाया नहीं करते। अगर कुरान को छूना है तो सबसे पहले तुझे गुस्ल करना होगा। उमर ने कहा चल बता गुस्ल कैसा किया जाएगा। उमर को गुस्ल करने का तरीका बताया। उमर गुस्ल करते जा रहे हैं, गुस्ल करते जा रहे हैं। गुस्ल के साथ मैल नहीं बल्कि दिल का कुफ्र भी धुल रहा है। गुस्ल मुकम्मल हुआ, वही कुरान की आयत सामने लाकर पेश की गई या किसी चमड़े या तख्ते पे लिखा हुआ करती थी, जैसे ही सामने लाकर पेश किया सबसे पहले उमर की नजर लफ्ज़े तौबा पे पड़ जाती है। पढ़ते जा रहे हैं, अजीब सा होता है, बदन कांपने लगता है। उमर ने कहा सैयदा देर न कर, मुझको उसके पास ले चल जिसने तुझे मुबारक कुरान ला कर दिया है। उमर जा रहे हैं, इस्लाम का पहला मदरसा है, लोगों को तालीम दीन की चुपके दी जा रही है। लोगों ने देखा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हाथ में तलवार है। अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर नीयत खराब होगी तो उसी की तलवार से उसी की गर्दन उड़ाऊंगा, अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर इतना कहकर अमीर हमजा खामोश हो जाते हैं। उमर जाकर पहुंचते हैं, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, दो सहाबा दौड़ कर आए, उमर को पकड़ लिया। आका ने फरमाया उमर, जो आका ने फरमाया सहाबा उमर को छोड़ दो, उमर को छोड़ दिया। उमर जाकर कदमों में गिर जाते हैं। आका फरमाते हैं उमर इस्लाम कबूल कर, उमर इस्लाम कबूल कर। उमर कहते हैं आका आप इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं। आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा, आज के बाद उमर अपने कदमों से जुदा नहीं होगा। उमर ने यही तो सवाल किए थे, या रसूल अल्लाह क्या हमारा दीन सच्चा है। आका ने फरमाया हाँ हमारा दीन सच्चा है। कहा या रसूल अल्लाह क्या कुरान सच्चा है। हाँ कुरान सच्चा है। कहा फिर हम छुपके की इबादत करते हैं। तो आका ने फरमाया ए उमर वक्त के हालात को समझो, वक्त के तसाकत को समझो, इतना कहना था। तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह बल्कि अब छुपके इबादत नहीं की जाएगी, मस्जिद अक़सा में खुल के इबादत की जाएगी। मुसलमानों की 40 की तादाद हो गई है, उमर भी ईमान ले आए हैं। मक्के में और हंगामा मच गया, अब तो उमर भी ईमान ले आए हैं, अब तो उमर भी ईमान ले आए हैं। ईमान और तेजी से फैलेगा। मक्के में किसी में हिम्मत ना थी जो आकर उमर का मुकाबला करता। कौन आता भाई, अच्छे के तो पसीने छूट जाया करते। जब कोई बाहर ना आया तो उमर गली में घूम रहे और नारा लगा रहे, कहते हैं आज से तुमने पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, अगर हिम्मत है तो आओ कलमा पढ़ने वालों को सता कर दिखाओ। जब कोई बाहर ना आया उमर दरवाजे पे जाते हैं, आवाज लगाते, कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन, कहते नाम उमर है। तो ऐसा लगता था कि जिस्म से रूह निकल गई है। जब कोई बाहर ना आया तो उमर गली में घूम रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। उमर जाकर एक मोड़ पर पहुंचते हैं, इतने देर में हजरत जुनैरा की नजर हजरत उमर पे पड़ जाती है। कहती है उमर इधर आ तो सही, वो दिन तुझे याद है जिस दिन मेरे मालिक ने पूछा था जुनैरा किसका नाम ले रही है, तो मैंने अपने नबी का नाम बताया कि मैं अपने नबी का नाम ले रही हूँ। उसने मुझ पे कूड़े बरसाए थे, कहा जुनैरा नबी का नाम लेना छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, तुम्हारे जिस्म से गोश्त जुदा कर दूंगा। तो जुनैरा ने कहा था अरे नादान तूने बहुत कम कीमत लगाई है मेरे नबी के इश्क की, अगर खुदा मुझे लाख जिंदगियां अता कर दे तो मैं एक एक करके नबी के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। नादान जुनैरा की हड्डियों में गोश्त तो बचा नहीं है, लेकिन जुनैरा के हर जिस्म की हड्डियां तोड़ कर दे, मेघ नहीं इसके रसूल की सदा नजर, मेघ नहीं इसके रसूल की सदा नजर आएगी। अबू जहल ने कहा जुनैरा ये क्या कह रही है। अबू जहल ने मालिक से कहा मालिक ये जुनैरा मुझसे क्या कह रही है। मालिक ने कहा जुनैरा नबी का नाम लेना छोड़ दे। कहा नहीं, कहा नबी का नाम लेना छोड़ दे। कहा नहीं। जुनैरा के हाथ बांध दिए गए, जुनैरा के पैर बांध दिए गए। कहा अभी वक्त है जुनैरा मान नबी का नाम लेना छोड़ दे। कहा नहीं। सरिया गरमाई गई, सुर्ख लाल हो गई, आंखों के सामने लाई गई। कहा नबी का नाम लेना छोड़ दे। जुनैरा ने कहा नहीं नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। एक आंख भी फोड़ दी गई। कहा जुनैरा अभी वक्त है मान जा, नबी का नाम लेना छोड़ दे। जुनैरा ने कहा था नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। दोनों वो भी आंख फोड़ दी गई, दोनों आंखें फूट जाती है। अबू जहल वही
अबू जहल वही तपती हुई रेत में डाल देता है और कहता है कि आंखें मैंने ले ली है, तो जिसका नाम लेती है अगर वो तुझे आंखें दे सकता है तो उसी से आंखें मांग ले। अल्लाह अकबर इतना कहकर सब चले जाते हैं। जुनेरा के हाथ भी बंधे हुए हैं, जुनेरा के पैर भी बंधे हुए हैं, जुनेरा की आंखें फूट गई है। जुनेरा रोने लगती है, कहते या अल्लाह मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मेरे पैर भी बंधे हुए हैं, मैं जाकर कहाँ तेरे महबूब को तलाश करूं। इतना कहना हुआ कि अजीब सी गलियों में खुशबू आने लगती है। जुनेरा को एहसास होता गया कि मेरा नबी आ रहा है। क्या किसी शख्स ने कान में आकर पूछा जुनेरा क्या हाल है? क्या पूछा? जुनेरा क्या हाल है? तो जुनेरा ने कहा आपने हाल पूछ लिया, सब कुछ ठीक हो गया। जो शख्स कान में आकर पूछा था कि जुनेरा क्या हाल है, वो कोई और न था, नबियों का सरदार था, हम सबका आका था। पूछा जुनेरा क्या हाल है? आपने हाल पूछ लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। आका ने फरमाया साहबा जुनेरा के हाथ खोलो। जुनेरा के हाथ खोले गए, जुनेरा के पैर खोले गए। जुनेरा रोने लगती है, कहते या रसूल अल्लाह मेरी आंखें फूट गई है। आका फरमाते हैं जुनेरा तुम इसलिए रो रही हो, इन आंखों से दुनिया नहीं देख सकती। तो जुनेरा ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, इन आंखों से दुनिया नहीं देख सकती, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे दिल में यही आरज़ू थी जब तक मेरी आंखों में रोशनी रहे, मेरे महबूब का चेहरा सामने रहे। अल्लाह अकबर इतना कहना हुआ, मेरे सरकार ने अपने मुंह से लुआ पे तेल निकाला और जुनेरा की आंखों में रगड़ना शुरू किया, रगड़ना शुरू किया। जुनेरा की आंखों में रोशनी आ जाती है। क्या किसी शख्स ने पूछा जुनेरा बता पहले से आंखों में फर्क है या नहीं? तो जुनेरा ने कहा था ऐसी रोशनी मैंने पहली बार देखी है, इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलकी आला हज़रत, मसलकी आला हज़रत फैज़ानी गौसुल वरा, फैज़ानी गौसुल वरा, फैज़ानी अमीरुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। चमन में फूल रहेंगे तो फिर खिलेंगे इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।